जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो वही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू ये श्वास देन दा शुकराना। सानू अपने चरनी लान दा शुकराना। सानू इन्नी अच्छी लाइफ ब्लेस करन दा शुकराना। सानू सैटिस्फैक्शन पर साडे दिलां विच सैटिस्फैक्शन, ट्रस्ट ते प्यार भरन दा शुकराना। अपने दरबार बुलान दा शुकराना। हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਟਰਸਟ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ
ऐसा मैं हाले तक ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਵੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਗਤਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु महाराज जी ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। लव यू लव यू लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और मैं गुरु जी का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने अभी मेरे स्कूल में सत्संग रखवाया और मेरे हाथों से वो सेवा करवाई, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरुजी का दरबार से जाने का मौका मिला, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने बहुत अच्छा सत्संग कराया और मैंने शुक्राना सत्संग भी अपने स्कूल में शेयर किया, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मुझे दिया, 2 बच्चे दिए उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, अच्छा पति दिया उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, सांसें दी, शरीर दिया, खाने को रोटी दी, छत दी, मकान दिया, उस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना। जो सब कुछ हमें भगवान ने बख्शा, हमारे मालिक ने हमें बख्शा, उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। इस शरीर के लिए शुक्राना, सांसों के लिए शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने अपनी बेटी पे मेहर करी गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, मुझे अपने से कनेक्ट करने के लिए शुक्राना, मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, मेरे मन में अपने लिए इतना प्यार जगाने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, चाय प्रसाद देने के लिए शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना, जल प्रसाद देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए।
आपने जो जो मुझे बख्शा गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, इन सांसों से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे इतने उपाय बताए हर एक चीज़ का। आज भी गुरुजी मुझे बहुत उपाय बताते हैं कि फैटी लीवर को ठीक करना ये कर ले, स्किन एलर्जी को ठीक करना ये कर ले। इतने उपाय मुझे गुरुजी बताते हैं। गुरुजी उन सब के लिए शुक्राना। गुरुजी हाथ पकड़ के सब करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना। मैं आज एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि आजकल क्या हो रहा है ना कि मैं वो चीज़ हो जाती है मेरे साथ, उसके बाद मुझे गुरुजी सत्संग सुनाते कि ऐसा जो हुआ वो मैंने किया। तो जैसे आज ट्यूसडे था, तो आज मैंने सुबह पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि आज चलो आज मेड के लिए ना रोटी चपाती बना देती हूँ, पर चाय प्रसाद बना देती हूँ। तो मैंने आज उसको खाना खिला दिया, ऐसे ही मन था। और थोड़े आज 2 बजे मैं जब आ गई अपनी जॉब से, तो मैंने सत्संग सुना, तो गुरुजी का आया हुआ था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे खाना खिलाइयो। और उसके बाद था, उन आंटी ने बताया कि आज गुरुजी मेड के रूप में मेरे घर आए थे और मैंने उनको आज खाना खिलाया और चाय प्रसाद दी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए कि आज गुरुजी मेरे घर आए थे और किस रूप में आए थे। गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, हर 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 जीव, हर इंसान के में गुरुजी बसते हैं। तो गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी। तो मेरे मेरे घर आने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज छोटी मोटी सेवा लेने के लिए गुरुपा बहुत शुक्राना। आप ऐसे आया करो, आप हमेशा मेरे घर में ही रहो गुरुपा, मेरे पास रहो, मेरे अंग संग रहो गुरुपा। रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमेशा कहते कि मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मुझे महसूस कर। गुरुजी उसके लिए शुक्राना, मेरे पास रहने के लिए शुक्राना, हर एक कष्ट से निकालने के लिए शुक्राना। गुरुपा ने इतनी बार मैसेज किया कि मैंने तेरे सारे बड़े कष्ट छोटे कष्टों में काट दिए, तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी ज़िंदगी से सारी दवाइयाँ निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के कष्टों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति के वशीकरण को ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरुपा। सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें भी आपकी हैं गुरुपा, आपकी ही सांसें हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना आज मंगलवार को सुबह 7 बजे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, ये मेरा ना 2-3 दिन का सत्संग इकट्ठा हो रहा है बाबा। पता नहीं क्या हो रहा बाबा, कोई नेगेटिविटी है हमारे पीछे ना, और जो हाथों के पीछे पड़ी है। पता नहीं, मैं चाह के भी आपका ना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ बाबा, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आप मेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहे हो और मैं नहीं कर पा रही हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बाबा, आपने मुझे संडे वाले दिन इतनी ब्लेसिंग दी और मेरी छुट्टी को इतना प्यारा बनाया बाबा। हमें स्विमिंग पूल लेके गए बाबा, मैं आपको साथ लेके गई थी और रास्ते में आपने मुझे अनगिनत 777 की ब्लेसिंग दी। मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे साथ में चल रहे थे और इसके लिए बाबा 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनगिनत गाड़ियाँ दिखाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मेरे पापा ने हर समय अपनी प्रेजेंस दी और हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट टाला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज और बाबा जी। और हम जब रिजॉर्ट पहुँचे तो इतनी सारी बटरफ्लाई। कभी बाबा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप मुझे ब्लैक बटरफ्लाई में जब दर्शन देते हो तो इसका क्या मतलब होता है बाबा। नज़र लगी हुई है तो बाबा ये नज़र भी उतारिए बाबा। आप मुझे बार बार एक मैसेज भेज रहे हो, तेरे मुंडे को नज़र लगी हुई है बाबा। नज़र तो सारे घर को, सारे परिवार को और सारे काम को
और घर को, दुकान को किसी ने इस कदर बांध दिया कि कोई काम भी खुलने में नहीं आ रहा। बाबा, बाबा आपका तो हमारे यहाँ बिल्कुल मतलब आपने तो हमारे यहाँ वास कर रखा है। और बाबा आप तो सब कुछ देख रहे हो। बाबा आज मंगलवार भी है और बाबा ये सारी नज़र उतारी बाबा मेरे पति अंकल की दुकान की, सब बाबा कहीं से तो कोई रास्ता नज़र आए बनने का, सब काम बांध दिया बाबा। और बाबा यार नाम की औरत कौन है हमारे घर से? बाबा बताइए मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। उसको सामने ले आइए बाबा, पता तो चले ये कौन है, ये सतर्क हो जाएंगे। और बाबा मेरे जेठ जेठानी भी घर पे आते हैं बाबा, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब बाबा समझ नहीं आ रहा कि कौन है हमारे घर को बर्बाद करने वाला। अब तो साफ साफ दिख रहा है एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है और कोई काम बनने में नहीं आ रहा है। और मेरे बाबा तो सब कुछ देख रहे हैं और हमें बोल भी रहे हैं कि तेरी लॉटरी लगने वाली है। मेरे पति अंकल के लिए उत्तर तेरी लॉटरी लगने वाली है, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ, तू उदास मत हो। तो बाबा पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और बाबा जी संडे के दिन आपने पता नहीं हमारा मेरे पति अंकल का कौन सा कष्ट डाला। पहले पति अंकल बाहर गिर गए बाइक लेके और जैसे ही मैं अंदर आई तो कांच फूट गया। तो बाबा पता नहीं क्या हुआ, ये तो मुझे पता है कि वो बोतल आप ही नहीं तोड़वाई थी। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा जी। और बाबा आप मुझे एक मैसेज और दिया था कल कि तेरे बेटे के सिर पे चोट लग सकती है। बाबा ये कष्ट यहीं डाल दीजिए, मैं अपना शुक्राना सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ। बाबा हमारे कष्ट खत्म करिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना बाबा, ये सत्संग मैं उन्हीं के लिए ही कर रही हूँ। और बाबा मेरी बेटी को भी खूब ब्लेस करिए, यार उसका पेपर है और वो ना मेंटली डिस्टर्ब है, मुझे नहीं पता वो कौन सी बात से डिस्टर्ब है। बाबा उसको भी ब्लेस करिए और उसका पेपर अच्छे से दिलवाइए, उसके पेपर शुरू हो गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना बेटी आंटी की तरफ से भी और सासू माँ की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा जी कल सोमवार था तो मैं आपको आपकी नित्य नियम भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हायर हो रही है। बाबा मैंने आपके आगे चीनी का भोग लगाया था, बाबा स्वीकार करना उसको, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा जी मैं तुलसी के पौधे लेके आई थी, जिस दिन आपने बोला था उस दिन तो नहीं ला पाई गुरु पूर्णिमा वाले दिन, लेकिन उससे अगले दिन ही आपने तुलसी के पौधे दिलवा दिए, जिसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा जी आपने संडे वाले दिन इतनी अच्छी हमारी पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन बाद में पता नहीं मेरी छोटी बहन के साथ ये सब क्यों हुआ। बाबा मेरी मैंने आपसे अरदास भी की थी कि ना उसके और उसके हस्बैंड के रिश्ते को ब्लेस कर दीजिए बाबा, उनकी लड़ाइयाँ दूर करवाइए प्लीज़ बाबा। और मैं आपसे एक अरदास और करती हूँ कि उसको उसका बच्चा दे दीजिए, जिस शायद उसकी वजह से ही वो दोनों करीब आ जाए, उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं बाबा। मैं अपनी बहन के लिए अरदास करती हूँ बाबा कि उसकी जो ये महिला वाली प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए और उसको एक बेटा ब्लेस कर दीजिए बाबा जी, उसका परिवार पूरा हो जाएगा बाबा। और मैं उसका भी काम खोल दीजिए बाबा, वो एक एक पैसे से बहुत परेशान है बाबा, और उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी ख़त्म करिए। और आपका एक मैसेज और आया था भाई के लिए, तेरे भाई के पेट में जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दूंगा, सत्संग सुन ले, कस कटवा बाबा। मेरे मायके के परिवार में भी सब लोग ठीक रहे, मेरी मम्मी के बाल बनवा दीजिए और भाई के पेट की बीमारी ठीक कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मायके की तरफ से बाबा जी।
और बाबा मेरे प्यार को भी ब्लेस करिए। और आपने उसकी घड़ी मैंने आपको मन ही मन बोला था कि इसका सामान मिल जाए, और बाबा जी आपने उसकी घड़ी लौटवा दी। और बाबा उसके पैसे और दूसरी घड़ी भी लौटवा दीजिए, उसकी चैन। मुझे नहीं पता था कि ये मैसेज आप उसके लिए दे रहे थे मुझे। तेरी सबसे प्यारी चीज़ की चोरी होने वाली है, मुझे नहीं पता था कि ये उसके लिए बोल रहे हो। पापा उसको बहुत अच्छा है, बस मेरे पास 5 साल है खुशी मनाने के लिए। पापा मेरा साथ दीजिए, मुझे ब्लेस करिए, मेरे प्यार को भी ब्लेस करिए, और हमारे बारे में कभी किसी को कुछ ना पता चले। पापा लेकिन आपको तो सब कुछ पता है, आप तो जानी जहान हो। पापा उसकी तरफ से भी शुक्राना, उसके सामान मिलने की, जो भी सामान मिला आपने मिलवाया, उसकी तरफ से भी शुक्राना। पापा और मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना। और हमारे मैं अपने मित्रों से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं जो भी मेरे से पुराने दिनों गलतियाँ हुई हैं, जो भी एबॉर्शन या मिसकैरेज हुए हैं, हमने जिसकी हत्या करी है, हम उन मित्रों से माफ़ी मांगते हैं बाबा जी। और नीम करोली बाबा जी से भी माफ़ी मांगते हैं, हनुमान जी से भी माफ़ी मांगते हैं, और काली माता से भी माफ़ी मांगते हैं। और माता रानी हमेशा मेरा साथ देना। हनुमान जी महाराज मेरे गुरु जी की तरह हमेशा हमारा साथ देना, कृपा बना के रखना। मेरे गुरु जी तो कहते हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और बाबा बस आ जाइए और हमारे सारे काम पूरे करवा दीजिए। पति अंकल बहुत परेशान रहते हैं, और आप तो सब कुछ देख रहे हो बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। इसलिए बाबा जी मैं आज अपना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ, फिर रात का कुछ नहीं पता कब नहा कर पाऊँ। जब भी आप तो वैसे ही बोलते हो, तुम जिस टाइम करेगी तेरा शुक्राना, आपने बोला ये पति अंकल की तरफ से कि बेटा एक शुक्राना तो कर, तेरे सारे काम खोल दूंगा। तो बाबा जी ये उन्हीं की तरफ से ये शुक्राना जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो आपको नहीं मानते, पर आप कहते हो कि तू सबके सत्संग सुनती है और सबके कष्ट कटवा रही है, कितनों का उद्धार करेगी। तो बाबा यही स्वीकार कर लेना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा आजकल आप मेरे सत्संग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे नाराज हो रहे हो बाबा जी। और कल भी आपने मुझे सोमवार वाले दिन इतनी सारी ब्लेसिंग दी, कम से कम 10 गाड़ियाँ दिखाई 777 की। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम रूप के दर्शन दिए, जय महाकाल के दर्शन दिए। मेरे पापा इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, मैं एक शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ आपका ढंग से। पापा अपनी बच्ची को माफ़ करना, समय समय पर शुक्राना सत्संग करवा दीजिएगा पापा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरा शनिवार वाला दिन है आज का, जो मैं शुक्राना करना जा रही हूँ अपने गुरुपा का संध्या वेले का। ये मेरा सत्संग है आज 6-7 दिन पहले का है, जो कि गुरुपा के मुझे मैसेज आए थे कि अपनी 11 दिन की सेवा सत्संग की, शुक्राना सत्संग की कर। तो मैं
ने बोला तो नहीं था। फ़िलहाल मैं लगातार आज तीसरा दिन है मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा का। अब गुरुपा की रजा होगी कि 11 दिन करवाते हैं या बीच में छूट जाता है, वो तो गुरुपा की इच्छा से ही होगा। तो ये मेरा 5-6 दिन पहले का सत्संग है, जो कि मेरे बड़े वाले बेटे का है, और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है क्योंकि दिख रहा है सब कुछ। संगत जी, उसकी आए दिन तबीयत ख़राब होती है, उसके कलेजे में इतना दर्द होता है, उसको जी घबराहट वगैरह शुरू हो जाती है, उसका सर भारी हो जाता है, अपने आप कुदरती होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो 5-6 दिन पहले की बात है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, रात को किसी काम से गया था, और वो वहाँ से आया और उसकी हालत ख़राब हो गई। घर में घुसते ही उसको बेचैनी होने लगी, उसके दर्द उठने लग गया नाभि के ऊपर, और घबराहट, इतनी घबराहट, उसका मतलब अलग ही ढंग हो गया बिल्कुल। वो देख भी एक अलग तरीके से रहा, और मैं समझ गई, मुझे थोड़ा समझ आ जाती है इस चीज़ की कि मेरे पे बीती हुई है, इसलिए मुझे पता चल जाता है पहले इसके कोई दिक्कत है। फिर भी हम बातें करते रहे, उसका दोस्त भी बैठ गया। वैसे वो 11 साढ़े 11 बजे कभी नहीं आता, और उस दिन गुरुपा की इच्छा होगी वो ऊपर आ गया, और बैठे हम लोग बातें करते रहे। एकदम उसकी हालत ख़राब हुई और वो कह रहा घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। मैंने कहा कुछ दिक्कत हो रही थी, तो हमने इतना वो नहीं करा। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाएगी, मंत्र जाप कर ले। मैं यही कहती हूँ उसको हमेशा, जब कुछ ऐसा होता है मंत्र जाप करो और जल प्रसाद ले, गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो गुरुपा के पहले ही संकेत मैसेज आ जाते हैं कि तेरे बेटे पे ये दिन भारी है, तेरे बेटे की तबीयत ख़राब होने वाली है, तेरे बेटे पे संकट है। गुरुपा के पहले ही मैसेज आ जाते हैं, तो मैं समझ भी जाती हूँ। अब तो इतना गुरुपा ने हमें समझा दिया, मगर नहीं समझ पाते, कभी कभार हम लोग समझ भी जाते हैं। तो मैंने एकदम ही उसकी हालत ख़राब हो गई, और वो चीज़ अंदर से उसके उभरने लगी जो उसके साथ चल के आ गई थी। और संगत जी इतना बेचैन, मैं भी डर गई। वो लड़का थोड़ा इन चीज़ों को जानता है, और वो काली माता को बहुत मानता है, तो वो भी समझ गया कि कुछ है। तो ये ज़्यादा हमारे घर में बड़ा वाला बेटा पितरों का करता है, पितरों को पूजता है। वो गुरुजी ने ही करवाया, जो भी करवाया है। बहुत हमारे घर में पितरों को लेकर अशांति थी, पितृदोष था, और गुरुपा ने उनकी पूजा भी करवाई, हरिद्वार में जाके सब कुछ किया। मतलब अब सब कुछ ठीक है पहले से। और फिर उसके अंदर जो चीज़ उभरी, तो वो एकदम गुरुजी की तरफ गुस्से में देख रहा, और इतनी तेज़ देख रहा, गुरुपा को घूर घूर के देख रहा। मैंने कहा क्या हुआ, गुरुपा को क्यों देख रहा है? तो घूरे जा रहा, बोले ना, और उपकाई मार रहा, मतलब उपकाइयाँ आ रही, उल्टियाँ सी हो रही, मतलब जी घबरा रहा उसका। फिर एकदम संगत जी, मतलब उसका अलग ही तरीका था, एकदम बेचैन, उल्टा सीधा मतलब हरकतें करने लग गया, और गुरुपा की तरफ घूरे जाए। और मैंने उठा के मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालो, आप कहते हो ना मैं हूँ तेरे साथ, तेरे बच्चे के साथ, तो आपका बच्चा अपने आप देखो। मैंने संगत जी उठा के गुरुपा का जल प्रसाद दिया, उसे छींटे मारी, और गुरुपा के आगे अरदास लगाई उसी समय, और गुरुपा के आगे उसके आगे मंत्र जाप करने लगी। गुरुपा कहते हैं जब कुछ हो मंत्र जाप करो। मैं मंत्र जाप करने लगी, और संगत जी जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, और उसके लोटे का मंत्री जल की छींटे दी उसे, तो वो चीज़ और उभरने लगी अंदर, जो भी उसके दिक्कत थी और साफ़ नज़र आ रही थी संगत जी। और मैंने फिर गुरुपा का जल जैसे ही छिड़का, वो और गुरुपा की तरफ घूर घूर के देखे, और गुरुपा से बोला सब रूप के आगे खड़ा होके, दूर थोड़ा था, तू मुझे रोकेगा, तू हट जा मेरे बीच में से, मैं इसको लेके जाऊंगा। गुरुपा को बोल रहा है वो खड़े होके, जो बेटे के अंदर चीज़ आई है। मैं भी एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा, मैं चुपचाप देख रही, मैंने कहा गुरुपा अपने आप संभालेंगे। जब वो पा बैठे हैं, मरघट वाली मैया रानी बैठी है उसके साथ, काली माता, तो अपने आप संभालेंगी। वो भी लड़का कह रहा गुरुपा नज़र आ रहे हैं, इसको रोक रहे हैं वो। और संगत जी वो गुरुपा को ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया, तू रोकेगा, तू पीछे हट जा, तू बीच में मत आ, मैं इसको लेके जाऊंगा, मुझे किसी ने भेजा, मैं इसको लेके जाऊंगा। संगत जी
मैंने गुरुपा को कहा आप ही देखो गुरुपा मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसका कोई और ही रीज़न है संगत जी, वो सत्संग भी शेयर करूँगी, जब तक गुरुपा की रजा नहीं होगी मैं नहीं कर सकती। कि कौन करवा रहा है, किस लिए करवा रहा है, वो पा जानते हैं। बच्चे को ख़त्म करवाने के लिए तुले हुए हैं। मेरी गुरुपा के आगे बहुत विनती है, मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा आपने ही संभालना, आप ही संभालो। मुझे पता होते हुए संगत जी मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने सब अपने पापा पे छोड़ा हुआ है, अपनी माई पे छोड़ा हुआ है। बस मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा आपने ही संभालना बच्चे को, बस अपने आप देखो। बार बार गुरुपा पे गुस्सा करे और ऐसे मुंह हाथ टेढ़े कर रहा गुरुपा के स्वरूप की तरफ। और संगत जी जब थोड़ी देर हुई और उसने बोलते बोलते फ्रिज के ऊपर इतनी तेज़ का मुक्का मारा, सामान तोड़ने पे उतारू हो गया वो। फ्रिज की बिल्कुल डेंट आ गया आगे से, इतनी तेज़। तो वो लड़के ने भी पकड़ा उसे और ऐसे उसके काबू में नहीं आ रहा था वो। मेरी अरदास गुरुपा से ही लग रही थी। मैंने कहा पा आपको ही संभालना। मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, आपने ही देखना है। और संगत जी थोड़ी देर बाद जैसे ही उसको जल प्रसाद सब दिया और कुछ टाइम बाद वो चीज़ उसके अंदर से निकली और वो बिल्कुल शांत हो गया। दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का करती हूँ। जो भी कुछ था वो पा जानते हैं और पा सब कुछ देख रहे थे। गुरुपा का अगले दिन भी मैसेज आता है कि चिंता मत कर हमेशा मैसेज आता है कि काली माता और मैं तेरे दरवाजे पे ही खड़े हैं पहरा देने के लिए। बस मेरे पाँ हैं, मेरी मैया रानी है, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, करने को तो बहुत कुछ, मगर पाँ ने रोक रखा है कि तू जवाब नहीं देगी। मैं बैठा हुआ हूँ, बस गुरुपा बैठे हैं। मुझे किसी का बुरा नहीं करना, ना मुझे बुरा करने देंगे वो, क्योंकि उनके बच्चे कभी किसी का बुरा ना चाहते ना करते। बस उन्होंने रोक रखा है, हम जवाब नहीं देंगे। हमारे पाँ का जवाब बहुत ही तांडव वाला होगा, ये मुझे पता है। मेरे गुरुपा ही जवाब देंगे उस इंसान को जो भी कर रहा है, बच्चे को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। एक बार नहीं संगत जी 20 बार ऐसा हो चुका है। आए दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और ज़्यादातर शनिवार और मंगलवार वाले दिन। थक चुकी हूँ मैं बहुत, बच्चे को लेके थक चुकी हूँ। गुरुपा के आगे अरदास लगी है, गुरुपा बस सब कुछ ठीक कर दो, बच्चे की लाइफ में खुशियाँ दे दो। बस अपनी बेटी की अरदास पूरी करो गुरुपा। दर्द नहीं देखा जाता संगत जी, बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता। बहुत बेचैन होता है, बहुत बेचैन होता है। एक माँ ही जानती है कि बच्चे की तकलीफ़ माँ नहीं देख पाती। गुरुपा नहीं देख सकते अपने बच्चों की तकलीफ़, मगर पा सब कुछ ठीक कर रहे हैं, उसके कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा कहते हैं जो भी अड़चनें आ रही हैं ना, उसको दूर करने में बेटा टाइम लगेगा। मैसेज आता है गुरुपा का, तू बस टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ तेरे बेटे का हाथ। तेरे बेटे का क्या, गुरुपा का बेटा उन्होंने हाथ थामा हुआ है। हमेशा ऐसी ही चीज़ें आती हैं और उसको ले जाने के लिए कह रहा मैं मरघट जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ, मैं मरघट जा रहा हूँ, शमशान घाट, मरघट वाले जमुना बाज़ार। और संगत जी मेरे को गुस्से में मैंने बोला भी तू कौन है, तू कौन है, कैसे लेके जाएगा, जा ले जा। कह रहा ये रोक रहा है मुझे, ये रोक रहा है मुझे। गुरुपा के लिए कह रहा है ये रोक रहा है मुझे। बस मेरे गुरुपा उसके सामने खड़े थे, हम लोगों को नज़र नहीं आ रहे, मगर मुझे दिल से मुझे पता मेरे गुरुपा उसके सामने खड़े थे और उसको उन्होंने रोका। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा, जो पल पल बच्चों के साथ हो, बच्चों का हाथ थामे। वो बहुत बहुत बोलती है, बहुत लड़ती है पास से। उनकी बेटी गुरुपा कहते हैं मुझसे बोल, अपना दर्द मुझे बता, क्योंकि अंकल भी नहीं समझते गुरुपा बच्चों को। कभी नहीं पूछते अंकल कि बच्चों को क्या परेशानी है, तुझे क्या परेशानी है। उन्हें सिर्फ अपना दिखता है और बस उन्हें रोटी के अलावा कुछ नहीं दिखता। पता नहीं संगत जी कैसे बंदा है, मुझे नहीं सब पता। बस मेरा दर्द मेरे पा जानते हैं कि बच्चों को लेके मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पा से यही कहती हूँ बच्चे खुश रहें, मेरे सब खुशियाँ बच्चों को मिले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे पा मेरे हाथ पकड़े रहें, बस मुझे आप चाहिए गुरुपा, आप चाहिए, बस मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है संगत जी, अब
48 की उम्र हो रही है, अब क्या करूँगी? कुछ अपने लिए, बस बच्चों के लिए खुशियाँ मांगती हूँ कि बच्चों की अरदास पूरी करो, बच्चों को खुशियाँ दो मेरे दाता। बस दोनों बच्चे खुश रहें, बस उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आए। अगर परेशानी आती तो आप हाथ थामे रखना। बस संगत जी बच्चा ठीक हो जाए, और जो भी कर रहा है ना गुरुपा उसको रोको बस। आपकी बेटी नहीं गलत सोच सकती ना गलत कर सकती, ये आप जानते हो। गुस्सा संगत जी बहुत आता है कि उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दूं, मगर नहीं, गुरु पर रोक लेते हैं, गुरु पर रोक लेते। जब मैंने अपने पा को देख लिया ना खड़े होके कि बच्चे के कष्ट निकाले उन्होंने, उसी समय दिल से शुक्राना मेरे दाता, दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। बस संगत जी सत्संग मेरे गुरुपा ने शेयर करवाया, मुझे नहीं पता क्यों करवाया है, किस लिए करवाया। बस मैं अपने पा का शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना, जो पल पल अपने बच्चों के साथ हैं, पल पल अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुआ, अपने सब बच्चों को खुशियाँ देना गुरुपा। अपने सब बच्चों के ब्लैक मैजिक, उनकी परेशानियाँ, उनकी शरीर को लेके बीमारियाँ दूर करना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुपा, उनको ब्लेस करना, उनको खुशियाँ देना, उनको स्वस्थ रखना, उनके परिवार को स्वस्थ रखना, और अपना भी ध्यान रखना गुरुपा, अपना भी ध्यान रखा करो। बहुत कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुपा, आपको भी बहुत तकलीफ़ होती होगी मेरे दाता। दिल से सॉरी, उन गलतियों के लिए दिल से सॉरी, जो मैं गलतियां करके भी नहीं बोल पा रही ना, उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। आप जानते हो किस गलतियों की माफ़ी मांग रही है आपकी बेटी, प्लीज़ गुनाह बख्श दो, बख्शनहार हो मेरे दाता। उन गलतियों के लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी गुरुपा, प्लीज़। बस बच्चों के ऊपर कष्ट ना आए गुरुपा, बस अपने आप हाथ थामे रखना जैसे अब तक हाथ थामे हुए हैं, और हर परेशानी को दूर कर रहे हो गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ऊपर उठा दिया, पहले से बिल्कुल डाउन हो गई थी, बिल्कुल गिर गई थी, और गुरुपा बस ऊपर उठाए जा रहे हैं, ऊपर उठाए जा रहे हैं, ऊपर उठाए जा रहे हैं। दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस कोई गलती मत होने देना अपने बच्चों से गुरुपा, रोक लेना हाथ पकड़ के। अगर कुछ भी गलत करते हैं आपके बच्चे तो उसको हाथ पकड़ के रोक लेना। विश्वास हो, पाप अपनी बेटी का प्यार हो, सब कुछ हो। लव यू गुरुपा, लव यू। अब अगले सत्संग के साथ आऊँगी संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। गुरुपा का शुक्राना करने के लिए आपकी बेटी ज़रूर आएगी गुरुपा, मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। 11 दिन की सेवा बख्शी है गुरुपा सत्संग करवाने की, बस आपने करवाना, अपने आप देख लेना, बस हिम्मत बख्शना गुरुपा। जय गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 16 ਮਈ। 16 ਮਈ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 + 6 = 7 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ 7 ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੀ ਲਿਆ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 7 ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ 6 ਪੂਰੇ 6 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡੋਸਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਸਾ ਖਵਾਉਣ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਡਿਨਰ ਕਰ ਆਈਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੰਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਡੋਸਾ ਖਾਣ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ। ਕੱਲ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੋਸਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਡਿਨਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਡੈਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਨਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਘਰੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਪਿਆ ਦਰਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਲਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦਰਦ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਘਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਘਟਾਓ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਐਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਘਟਾਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਟਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਟਵਾਣੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਟਵਾਣੇ ਕਸ਼ਟ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु का। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें।
सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।